Okay, last class we discussed three important activities from chapter 1, activity 1.1, activity 1.2, activity 1.3. In short, activity 1.1, we discussed burning of magnesium ribbon, about burning of, and we know that magnesium ribbon, I am writing equations directly, magnesium ribbon, which is solid, on burning reacts with oxygen gas and produces what? Magnesium oxide, which is solid. Magnesium oxide. Then we discussed in the same activity, we discussed magnesium oxide, which is a solid, on dissolving in water, which is a liquid, gives magnesium hydroxide aqueous solution. तो अब तुम लोग इस स्टेज में पहुंच गया कि इक्वेशन लिखते वक्त यू शुड मेंशन व्हाट फिजिकल स्टेट्स. ठीक है. So we discussed in this activity that magnesium ribbon on burning produces magnesium oxide. Magnesium oxide mixed with water gives what? Magnesium hydroxide. And I also explained about that litmus test. Magnesium hydroxide solution can turn red litmus blue. Red litmus blue. So what is the chemical nature? Basic. Chemical nature? Basic. Acids turn? Acids turn. Blue litmus, red, and bases turn. Then in second activity, activity 1.2, activity 1.2, we discussed mixing of two solutions. Mixing of two. There we discussed aqueous solution of lead nitrate, lead 2 nitrate actually. Aqueous solution of lead nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide. Reacts with aqueous solution of potassium. क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? Lead 2 iodide and potassium nitrate. We'll get PbI2 solid and potassium nitrate aqueous solution. Potassium nitrate aqueous solution. If I ask you, what is the color of this compound? Yellow. Okay. Color of this compound? Yellow. And I discussed, while discussing this reaction, I discussed this compound forms precipitate. Forms what? Precipitate. Thereby, this type of reactions are also called precipitation reaction. And activity 1.3, I am not balancing these equations. Okay. Balancing काम तुम्हारा है. So, activity 1.3, we discussed reaction of metal with acid. Zinc solid reacts with hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. Zinc solid reacts with dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. Zinc with hydrochloric acid क्या प्रोड्यूस होगा? Zinc chloride. Zinc chloride solution and which gas? Hydrogen gas. And zinc with sulfuric acid will give what? Zinc sulfate aqueous solution and which gas? Hydrogen gas. And these reactions are exothermic. These reactions are exothermic. That means heat is released, or we can say energy is liberated in the form of heat. Energy is liberated in the form of heat. And we already discussed these equations. ये सब इक्वेशन हम लोग लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था. बैलेंसिंग पार्ट हमेशा whenever you write chemical equation you should try to balance chemical equations. 2 मिनट टाइम लो और वापस इनको नोट डाउन करो.
बाकी सब इक्वेशन तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। एक में थोड़ा प्रॉब्लम तुम लोग को हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम वाला इक्वेशन, सॉरी यहाँ तो है ही नहीं, ऑल आर इजी केमिकल इक्वेशंस टू बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। So we discussed in activity 1.3 that zinc reacts with dilute acid, specially hydrochloric acid and sulfuric acid gives, hydrochloric acid के साथ क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड। अब दिमाग में एक चीज सेट रख लो कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एवरी टाइम यू विल गेट व्हाट, क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ मेटल। मैग्नीशियम होता तो यहाँ पे जिंक है तो क्या मिला, एल्यूमिनियम होता तो लाइक दैट। यहाँ पे मैग्नीशियम होने से यहाँ क्या मिलता, मैग्नीशियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम होने से, कैल्शियम होने से, तो इक्वेशन लिखना थोड़ा कंफर्ट होगा कि नहीं। तो इन दिस रिएक्शन जिंक इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉड। रिएक्शन करते वक्त जिंक का रॉड लेके एसिड में डीप नहीं करेगा, जिंक का पाउडर भी नहीं लेगा। अब किस फॉर्म में लेगा किसी को पता है, ग्रैन्युलेटेड जिंक, जिंक का ग्रैन्यूल, स्मॉल पीसेस, ओके। अब ग्रैन्युलेटेड जिंक क्यों लेता है, उसका रीजन नोट डाउन किया था लास्ट क्लास, नहीं, ये कर लो, इंपॉर्टेंट है, स्कूल में टीचर पूछ सकता है व्हाई ग्रैन्युलेटेड जिंक इज यूज्ड। सो व्हाई ग्रैन्युलेटेड जिंक इज यूज्ड, रीजन क्या है, एक है लार्जर सरफेस एरिया। लार्जर सरफेस एरिया होने से फायदा क्या, रिएक्शन विल बी फास्टर, रिएक्शन विल बी फास्टर। और ग्रैन्युलेटेड जिंक में इंप्यूरिटीज होता है, which impurity, copper, and that copper will act as catalyst, will increase the rate of reaction. So इसीलिए granulated zinc यूज किया जाता है, so that there is faster production of hydrogen gas. Okay, so why granulated zinc is used, two reasons, number one, larger surface area, second, copper impurity present in it, that is copper acts as catalyst which increases the rate of reaction, and both these points are responsible for faster production of which gas, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानता है तुम लोग, it burns with pop sound, it burns with explosion producing pop sound। जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन होगा, अगर उसको उसका माउथ थंब से बंद करके रखे हम लोग, तो कौन सा गैस एक्यूमुलेट होगा, हाइड्रोजन, और एक बर्निंग मैचस्टिक लाने से that gas burns with pop sound, it burns with explosion producing pop sound। आज का क्लास में हम लोग क्या करेगा, पूरा चैप्टर का एक बार डिस्कशन शॉर्ट में करेगा, मतलब चैप्टर में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एग्जांपल्स। और जिन स्टूडेंट को आज का क्लास समझ में आ जाता है वो घर में बैठ के पूरा चैप्टर रीड कर पाएगा। ऐसा नहीं है अब वो घर में बैठ के पूरा चैप्टर रीडिंग करेगा, लेकिन हम डिटेल डिस्कशन करेगा। आज का क्लास हम चाहता है कि तुम लोग को पूरा चैप्टर में कंटेंट क्या है उसका बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है, ये क्लियर है। आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या डिस्कस करेगा हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडलाइन लिख सकते हैं तुम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। First type that we are going to discuss is combination reaction. First type that we are going to discuss is combination reaction. प्रॉपर डेफिनेशन आज डिस्कस नहीं करेगा, एकदम बेसिक आइडिया देना है हमको, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हियर two or more reactants, react to give
सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स कितना, 2 या उससे ज्यादा, और प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, तो रिएक्शन को क्या बोलेगा हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ यू लुक एट द एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen gas. Do you know the name of the product? एमोनिया गैस। एमोनिया है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ये एमोनिया और एमोनियम वर्ड में। एमोनिया इज अ गैस, फॉर्मूला इज NH3, और एमोनियम इज आयन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव वैलेंसी 1। सो यहां कौन सा गैस बनने वाला है, NH3, ammonia gas. Okay, so if I ask you, is it a combination reaction? Is it a combination reaction? Why this is combination reaction? Because two reactants, one product. Two reactants, one product. Next, can you name this compound? Can you name this compound? Sulfur dioxide gas. क्या है ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एंड दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस, कैन यू गेस द प्रोडक्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। फर्स्ट में नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस ammonia. Second one, sulfur dioxide gas reacts with oxygen gas to produce sulfur trioxide gas. And third one, ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas. अब HCl अगर गैस का फॉर्म में होता है, HCl अगर गैस का फॉर्म में होता है, तब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। एंड कैन यू गेस द प्रोडक्ट, एनीवन? NH3 और HCl मिलके एमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला बता सकते हैं? हाँ, NH4Cl, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड इज सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। अब ये 3 इक्वेशन क्यों डिस्कस किया, उसके पीछे भी रीजन है कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एग्जांपल से भी तो बता सकता था। पहला रिएक्शन में क्या स्पेशल है, सेकेंड वाला कैसे डिफरेंट है देखना। इन द फर्स्ट रिएक्शन, in the first reaction, element combines with element to form compound. दो एलिमेंट कंबाइन हुआ और एक कंपाउंड मिला तुमको। सेकेंड रिएक्शन, a compound reacts with element to form another compound. And third reaction, compound with compound produces another compound. कंपाउंड तो समझ में आता है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये तो एलिमेंट है, ओनली नाइट्रोजन एटॉम। सो फर्स्ट वन एलिमेंट गिव्स, सेकेंड वन कंपाउंड, एलिमेंट गिव्स अनदर कंपाउंड, एंड हियर कंपाउंड विथ अनदर कंपाउंड, और 2 कंपाउंड्स रिएक्ट टू गिव न्यू कंपाउंड। ओके, अब जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेगा, हमारा ये बोलने का वेट नहीं करना है, और तुमको क्या करना है, बैलेंस करना ही है। तो 1 मिनट टाइम लो, जल्दी से बैलेंस करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं है ये। सो इक्वेशन बैलेंसिंग का काम खुद को ही करना है। वी डिस्कस्ड अबाउट, बेसिक डिस्कशन अबाउट combination reaction. What happens in combination reaction? 2 or more reactants react to give single product. Next we are going to discuss about second type, decomposition reaction. Decomposition reaction. Here one reactant gives 2 or more products.
by application of energy. By application of energy in the form of heat, electricity, light, etc. And in your syllabus, 3 types of decomposition reactions are discussed. First one, it is thermal decomposition reaction. First one, thermal decomposition reaction. And in these type of reactions, energy is supplied in the form of heat. अगर केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट सप्लाई करेगा डिकम्पोजिशन के लिए, उसको क्या बोलेगा हम लोग? थर्मल. थर्मल वर्ड का मीनिंग क्या है? हीट. सेकेंड टाइप, इलेक्ट्रिकल decomposition. Electrical decomposition reaction. And electrical decomposition reactions are also called electrolysis. Also called what? Electrolysis. Electrical decomposition reactions are also called electrolysis, and here energy is supplied in the form of electricity. In the form of electricity. And the third type, photochemical decomposition reaction. Third type, photochemical decomposition reaction. And here energy supplied in the form of light. Energy is supplied in the form of light. So if I ask you what are the 3 types of decomposition reaction, first one, thermal decomposition reaction. Second one, electrical decomposition reaction. Third one, photochemical decomposition reaction. On the basis of what? Form of energy supplied. Form of energy supplied for reaction to take place. Decomposition reaction में होता क्या है? एक reactant होगा और वो एनर्जी सप्लाई से क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और फॉर्म करेगा 2 or more products. So AB breaks down to form what? A plus B by the use of energy. Then such reactions are called what? Decomposition reaction. और इसका 3 types क्या क्या है? First one, thermal decomposition reaction. Second one, third one, photochemical decomposition reaction. And before this I discussed combination reaction. Reaction. So combination reaction में हम जो examples दिया था बता दो. N2 plus H2 gives ammonia. Then NH4 plus HCl gives us so second one, sulfur dioxide reacts with oxygen to form what? Sulfur trioxide gas. And third one, ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas. Ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas to form ammonium chloride. Ammonium chloride का formula NH4Cl. Have you completed writing? All of you? Done? So what are the 3 types of decomposition reaction? First one, if I ask you, first one, thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction.
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स डिस्कस करेगा हम लोग अभी। फर्स्ट एग्जांपल PbNO3 whole twice. PbNO3 whole twice, it is lead 2 nitrate. रोमन में वैलेंसी लिख देना चाहिए और ऐसे ही लर्न करना, फायदा में रहेगा बाद में। लेड टू नाइट्रेट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम आज देगा लेकिन डिटेल में बाद में डिस्कस करेगा। आज कौन कितना मेमोराइज कर सकता देख लो। इस सॉलिड का कलर है व्हाइट। कैसा? व्हाइट। एंड दिस व्हाइट सॉलिड ऑन हीटिंग, और तुम लोग जानता है हीटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकता है, सिंबल डेल्टा। और फिजिकल स्टेट आज थोड़ा ट्राई करेगा हम लोग विथ फिजिकल स्टेट। ये सॉलिड है। देखो कुछ कुछ फिजिकल स्टेट इक्वेशन में याद भी रखना पड़ेगा। अब हमको पता है कि इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट कैसा फॉर्म में यूज किया जाता है, सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। ऑन हीटिंग वी यूज दिस सिंबल डेल्टा, और यू कैन यूज द वर्ड हीट, ये भी कर सकता हूं। इस एरो के ऊपर क्या कर सकता है, वर्ड में लिख सकता है हीट। एंड यू विल गेट एनी आइडिया, you will get PbO solid, NO2 gas, oxygen gas. PbO is lead to oxide, and this solid is yellow colored solid. कैसा solid? Yellow. ये कैसा था? White. और ये जो गैस यहां पे बना है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस का कलर कोई बता सकता है? ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स, वेपर जैसा निकलेगा टेस्ट ट्यूब से। एंड ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस गैस। So if I ask you what happens when lead to nitrate is heated, lead to nitrate on heating gives lead to oxide, nitrogen dioxide gas, and which gas? Oxygen gas. Balancing continue रखना। Then another example we can discuss. Another example. FeSO4. FeSO4 solid. FeSO4 is iron 2 sulfate. It is iron 2 sulfate. एक और नाम बता सकते हैं कोई भी? आयरन 2 सल्फेट का एक और नाम फेरस सल्फेट। इट इज व्हाट? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। It is ferrous sulfate. Ferrous sulfate is a solid on heating. Ferrous sulfate, it is a solid on heating, gives ferric oxide, Fe2O3. It is what? Ferric oxide. Ferric oxide solid. Ferric oxide solid. अच्छा इसका कलर कैसा है पता है किसी को? ये व्हाइट है। कैसा है? व्हाइट। और ये व्हाइट सब्सटेंस इधर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। कैसा हो जाएगा? ब्राउन। और साथ में दो कलरलेस गैस निकलेगा इधर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इन गैस के बारे में स्पेशल बात बता देते, ये दोनों गैसेस एसिडिक इन नेचर है। कैसा है? एसिडिक। अब किसी गैस को एसिडिक क्यों बोला जाता है? हम लोग एक्टिविटी 1 में डिस्कस किया था, पानी में डिसॉल्व करने से एसिड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक क्यों बोला था हम लोग? व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और इनको अगर वाटर में मिक्स करेगा तो एसिड बनेगा दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब जब इतना जान ही गए तो थोड़ा और जानने में कोई दिक्कत तो है नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स किए तो कौन सा एसिड बनेगा जान लो। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में मिक्स किए कौन सा एसिड बनेगा जान लेना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड in water will give H2SO3 and here H2SO4। H2SO3 वो जो शीट हम ये दिया था उसका पहला पेज में फॉर्मूला था। H2SO3 is sulfurous acid, H2SO4 is sulfuric acid। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। क्लास 10 में उसी स्टूडेंट को मजा आएगा
जिसको सिंबल फॉर्मूला का नॉलेज अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तुम लोग देख लो, हम सिर्फ आज का क्लास में बेसिक्स बता रहा है, चैप्टर का डेप्थ में नहीं जाएगा। आज कितना इक्वेशन मिलने वाला तुम्हें, ये सब इक्वेशन बुक का ही इक्वेशन है, कुछ भी हम बाहर से नहीं दे रहा तुम लोग को, ठीक है। सो अब हम पूछेगा तुम लोग को क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, लुक एट हियर, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड टू नाइट्रेट इज हीटेड? lead oxide, nitrogen dioxide gas and oxygen gas. What happens when ferrous sulfate is heated? Sulfur dioxide and sulfur trioxide. And whenever you write chemical equation, you will have to balance chemical equation. ओके इतना देर में बैलेंस नहीं हुआ तो फिर थोड़ा टाइम लग रहा है तुम लोग को। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा बता दो, जिसका हो गया यहाँ पे 2 then 4 and I think the equation is balanced. इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या यूज करना है, 2, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बस ये प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। हम बार बार इतना बैलेंसिंग करके नहीं देगा, मेथड सिखा दिया, तुम लोग दिमाग लगाते रहना। So we discussed examples of thermal decomposition. इससे पहले कॉम्बिनेशन का कितना एग्जाम्पल डिस्कस किया था, और थर्मल डिकम्पोजिशन का 2। उसके बाद कौन सा डिकम्पोजिशन आता है, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इफ यू यूज वाटर H2O, और वाटर तुम लोग जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुना है? डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर। तो ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, लेकिन ये तो डिस्टिल्ड वाटर, H2O का मतलब डिस्टिल्ड वाटर होता है लैब में। सो यहां पे हम लोग थोड़ा एसिड ऐड करेगा, फॉर्मूला में दिखाने का जरूरत नहीं है। एसिडुलेटेड वाटर and we will pass electricity through this. We'll pass electricity, we'll get hydrogen gas and which gas? Oxygen. Water molecule decompose हो गया, कैसे? Water molecule decompose हो गया कैसे? By use of electricity, thereby it is called what? Electrical decomposition reaction. Try to balance this equation. Another example, sodium chloride. सोडियम क्लोराइड सॉलिड है या लिक्विड या गैस है? सॉलिड। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, लेकिन सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, तो इसको मेल्ट करना होगा। क्या करना होगा? मेल्ट। तो इसीलिए हम NaCl के ब्रैकेट में L लिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू fused or we can say molten sodium chloride, fused or molten sodium chloride, then we will get sodium and we will get chlorine gas. Sodium, solid, chlorine gas, and equations you will have to balance. Simple equation है, बैलेंस करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिनका फर्स्ट क्लास है आज, वो एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि नाम तो याद कर सकता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होने से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सोडियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन होने से क्या मिलेगा? सोडियम एंड क्लोरीन। सो यू विल हैव टू बैलेंस दीज टू सिंपल इक्वेशंस। ये किसका एग्जांपल था? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए यू कैन राइट 2 हियर, 2 यहाँ लिखने से हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, और क्लोरीन वहां 2 है तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखने से equation is balanced. Done. Now we are going to discuss third type, photochemical decomposition reaction.
photochemical decomposition reaction. Here energy supplied in the form of, अच्छा ये ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? कोई भी चीज को तोड़ना है, तुमको ब्रेक करना है, देयर इज नीड ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री में कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, देयर इज नीड ऑफ व्हाट? एनर्जी. ओके, इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, if it is exposed to sunlight, if it is exposed to sunlight, silver chloride light में अगर रख देता है, will get silver and chlorine gas. डिकम्पोज हुआ कि नहीं? सिल्वर क्लोराइड केमिकल को हम लोग क्या ऐसे ही किसी भी ग्लास का बॉटल में रखने से क्या उसका प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगा? नहीं. अगर लैब में इसको डार्क बॉटल में रखा जाता है, व्हाई इट इज केप्ट इन डार्क बॉटल्स? इफ इट इज केप्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, इट विल बी एक्सपोज टू लाइट एंड इट विल डिकम्पोज, thereby it is stored in dark bottles. So silver chloride exposed to sunlight will give what? Silver and chlorine. And similarly silver bromide, AgBr, silver bromide on exposed to sunlight will give silver and bromine gas. और इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस, इधर टू और टू इक्वेशन बैलेंस. इजी है. किसका रिएक्शन इजी लगा? सबसे इजी यही लगा होगा. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, silver and chlorine, and silver bromide exposed to sunlight gives silver and bromine. और ये दोनों रिएक्शन का एक एप्लीकेशन भी है. These two reactions are used in black and white photography. These are used in black and white photography. कैसे डिटेल में हम लोग बात करेगा, आज बेसिक बता रहा हूं, जस्ट यूज बता रहा है. So what are the different types of chemical reaction में? First type combination, second type decomposition का 3 type, thermal decomposition, electrical decomposition and photochemical decomposition reaction. और सबका एग्जाम्पल, फर्स्ट में कॉम्बिनेशन का कितना एग्जाम्पल, देन बाकी सबका कितना एग्जाम्पल, टोटल कितना हो गया अब तक? 9 इक्वेशंस. कितना इक्वेशंस? 9 हो गया रिटन. नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हियर one element takes the place of another element in a compound during reaction. One element takes the place of another element in a compound. एक कंपाउंड में एलिमेंट को हटा के कोई और एलिमेंट उसका जगह ले लेने से हम लोग क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट हुआ. क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट. एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा. जिंक with hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, and sodium with water. Sodium with water and zinc with hydrochloric acid. Zinc displaces hydrogen, will form zinc chloride aqueous solution, and which gas?
हाइड्रोजन गैस, और इस रिएक्शन के बारे में एक स्पेशल बात तुम लोग को पहले से पता है, एक्सोथर्मिक प्लस हीट यू कैन राइट। और सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम मेटल के बारे में क्लास 8 में सुना होगा तुम लोग। इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। डू यू नो हाउ इट इज स्टोर्ड? It is stored in kerosene because it is highly reactive. It may react with water, it may react with air or oxygen. इसका रिएक्शन वाटर के साथ विगोरस होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर will form sodium hydroxide, will form sodium hydroxide and hydrogen gas। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल यूज कर सकते हैं। Okay, so both are displacement reaction. One element is taking the place of another। बोर्ड में देखना एकदम क्लियर हो जाएगा। जिंक किसका प्लेस ले रहा है HCl में? HCl एक कंपाउंड, एक कंपाउंड का एक एलिमेंट को हटा के अगर कोई और एलिमेंट आ जाएगा हम क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ बैलेंसिंग पार्ट यू ट्राई योरसेल्फ। कॉपर सल्फेट जिंक, वैसे भी एक और एग्जांपल अगर देख सकते हैं, जिंक with copper sulfate aqueous solution। जिंक विथ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। इफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दैट आई डिस्कस्ड लास्ट क्लास, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, सो यू विल गेट व्हाट? जिंक सल्फेट aqueous solution। and what is displaced? Copper। what is displaced? Copper। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound। one element takes the place of another element in a compound। write down the examples। बैलेंसिंग पार्ट, आई थिंक यू बैलेंस्ड ऑल दिस इक्वेशन। इसमें क्या करना होगा? 2 और इधर 2 2 and 2 और नेक्स्ट वन ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। double displacement reaction, also called double decomposition reaction। also called what? Double decomposition reaction। double displacement reaction also called double decomposition reaction। here two compounds react by exchange of atoms, by exchange of atoms or group of atoms or ions। मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा और अपना एटॉम्स को एक्सचेंज करेगा या अपना आयॉन्स को एक्सचेंज करेगा, तो हम क्या बोलेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से ही बेटर समझ में आएगा तुम लोग को। फर्स्ट वन, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन? aqueous solution of barium chloride, if it is allowed to react with aqueous solution of silver nitrate, sodium sulfate, aqueous solution of sodium sulfate, there will be double displacement reaction। there will be double displacement reaction। and one more example that we have already discussed, in activity 1.2, that aqueous solution of lead 2 nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide, there will be double displacement reaction। होगा क्या? ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन जब रिएक्ट करेगा तो इनका आयॉन्स एक्सचेंज हो जाएगा।
बेरियम के साथ कौन सा आयन है? क्लोराइड है ना, तो सल्फेट आ जाएगा। और सोडियम के साथ कौन सा आयन है? तो क्लोराइड आ जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। लेड के साथ कौन सा आयन है? नाइट्रेट, वो किसके साथ चला जाएगा? पोटाशियम। किसके साथ चला जाएगा? पोटाशियम। और पोटाशियम के साथ क्या है यहाँ पे? आयोडाइड, वो किसके साथ चला जाएगा? लेड। सो यू विल गेट बेरियम सल्फेट सॉलिड। अब तुमको थोड़ा याद रखना होगा कि इस टाइप का रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। और वो जो प्रेसिपिटेट होगा उसका नाम, उसका कलर भी याद रखना होता है, ठीक है? बेरियम सल्फेट सॉलिड, एंड यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड का मिलेगा यहाँ पे सोल्यूशन। क्या मिलेगा? सोल्यूशन। और सेकंड वाला तो अब तक याद हो गया होगा, क्या मिलेगा? दिस इज लेड टू नाइट्रेट रिएक्ट्स टू फॉर्म लेड टू आयोडाइड सॉलिड, और साथ में सॉल्यूशन किसका? पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। इसका कलर क्या बताया था? येलो। इसका कलर कैसा है? व्हाइट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट? व्हाइट। और ये कैसा प्रेसिपिटेट? येलो प्रेसिपिटेट। ओके, सो आई डिस्कस्ड एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास तक सब लर्न हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं, कम से कम 2 एग्जाम्पल। और डिकम्पोजिशन का जो 3 टाइप्स है उसका एक एग्जाम्पल कम से कम याद रख लेना और इस पे ध्यान देना। डबल डिकम्पोजिशन बैलेंसिंग पार्ट ट्राई कर लो। ओके, फर्स्ट वन, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2, इधर क्लोरीन 1, क्लोरीन बैलेंस तो सोडियम बैलेंस, और बेरियम 1 और S1 O4 बैलेंस्ड। इधर लेड 1 बैलेंस, आयोडीन 1 आयोडीन 2, आयोडीन को बैलेंस किया। पोटाशियम 2 हो गया, पोटाशियम को 2 किया, तो नाइट्रोजन 2 हुआ, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 इक्वेशन इज balanced. So I discussed how many types of chemical reaction? 4 type. First one, second one, third one, displacement बोल सकते हो उसको. Third one, displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction, and the last type discussed in your syllabus that we are going to discuss. Last type. Last type, number 5, oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. तो पहले जान लो ऑक्सीडेशन क्लास 10 लेवल में, हायर क्लास में और भी एडवांस डेफिनेशन है, लेकिन क्लास 10 लेवल का ही बता रहा हूं. ऑक्सीडेशन इज सिंपली addition of oxygen, removal of hydrogen, and loss of electrons. थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हर स्कूल टीचर का फेवरेट होता है, बुक में बहुत अच्छा से इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, समझ में? इस बुक में मेनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये हर स्कूल में डिस्कस होगा. देन रिडक्शन इज इसका ऑपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देन removal of oxygen, and third, gain of electrons. And you should know that those chemical reactions in which
those chemical reactions in which oxidation and reduction, those chemical reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously. Those chemical reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called, anyone? Are called redox reactions. Are called redox reactions. So if I ask you what is oxidation, तो तीनों term use करना होगा एग्जाम में. Oxidation is addition of oxygen, removal of, loss of electron. Reduction is addition of hydrogen, removal of, gain of electrons. And today I will discuss only one example of redox reaction. किसका? Redox. Done? Zinc oxide is heated in presence of कार्बन का एक फॉर्म होता है, कोक बोला जाता है, COKE. ये कार्बन ही होता है. अब उस कोक के साथ कंपेयर मत करना जो ड्रिंक मिलता है मार्केट में. कोक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इज अ फॉर्म ऑफ. तो ZnO plus C on heating gives what? Zn plus CO. इस रिएक्शन को ठीक से ऑब्जर्व करने से ZnO क्या बन गया? कार्बन क्या बन गया? ZnO Zn बन गया. कैसे बना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड removal of oxygen is reduction. Is what? Reduction. Carbon forms carbon or gets converted into carbon monoxide. कुछ ऐड हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation. Is called what? Oxidation. Addition of oxygen is called oxidation. So is it redox reaction? एक इक्वेशन में सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, उसका कोई जरूरी नहीं है. कोई भी दो कॉन्सेप्ट, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का अप्लाई अगर हो जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलेगा हम लोग? तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्यों बोलेगा इसको रिडॉक्स? इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली बोथ प्रोसेस आर गोइंग ऑन, देयरबाय इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो आज का क्लास में हम लोग मेनली फोकस किया व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस्ड इन योर सिलेबस. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, देन एंड लास्ट टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. और आज इतना नॉलेज काफी हद तक